Hello everyone, I am Yamini Seni and today we are going to do the summary of chapter number 15 Improvement in Food Resources, which is from class 9 science subject. Okay, so let us talk about the summary and after that we will do the exercise of this chapter. So, what we have in the summary over here, so what you have learned, this is the page number 213 in your book. So, there are several nutrients essential for crops. Of these, some are required in large quantities and are known as macronutrients, whereas the rest of the nutrients are required in small quantities and are known as माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट वी ऑल नो कि किनको हम मैक्रो कहते हैं, किनको हम माइक्रो कहते हैं. मैक्रो का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में, तो जो लार्ज अमाउंट में चाहिए वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. नंबर सेकंड पॉइंट है इसमें, द मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स आर द मेन sources of nutrients supplied to crops. These we all know. Now let us move to the next page. That is the point number 3. Organic farming is a farming system with minimal or no use of chemicals as fertilizer, herbicides, pesticides, and with maximum input of organic manures. रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट एंड बायोजेंट्स विद हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम, जिसके बारे में हमने और भी बात करी थी कि कुछ ऐसे हमारे पास ब्रीड्स होती हैं जिनको जो ह्यूमंस के लिए इतना हेल्दी नहीं होता है पर वो जो एनिमल्स हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्दी होता है. तो इस तरह से हम रिसाइकल जो है वो कर सकते हैं. So next point will be mixed farming is a system of farming on a particular farm which includes crop production, raising of livestock, etc. Then mixed cropping की बात भी हमने की थी कि is a growing of two or more crops simultaneously on the same piece of land. Then growing two or more crops in definite row patterns is known as intercropping. Then we talked about growing of different crops on a piece of land in pre-planned succession is called crop rotation. तो देखो आप यहाँ से जो है जो आपको डेफिनेशंस चाहिए होंगे, जो आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म करने हैं, यहाँ से भी आप उसकी डेफिनेशन ले सकते हैं. सो varietal improvement is required for higher yield, good quality, biotic, abiotic resistance, shortening the maturity duration, wider adaptability and desirable agronomic characteristics. इसके बारे में हमने बात करी थी कि हम किस तरह से जो है दो ब्रीड्स को क्रॉस करवाते हैं सो दैट जो हमारे को चाहिए चीज़ें, जो भी हमें डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ चाहिए किसी भी एनिमल प्रोडक्ट से, वो हमें मिल सके. देन फार्म एनिमल्स रिक्वायर proper care and management such as shelter, feeding, breeding and disease control. This is called animal husbandry. Then animal husbandry क्या होता है, इसके बारे में भी हमने बात करी थी. Poultry farming is done to raise domestic fowls. Poultry production includes egg production and broiler production for poultry meat. ये हम सभी को पता है कि जो हम ब्रॉयलर्स हैं वो बेसिकली मीट के लिए यूज़ किया जाता है और जो लेयर्स हैं उनको वो किसके लिए कहते हैं, जिनके हमें जो एग चाहिए होते हैं उनके लिए हम लेयर्स जो हैं वो करते हैं. राइट. टू इन्हांस पोल्ट्री प्रोडक्शन क्रॉस ब्रीडिंग इज डन बिटवीन इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स फॉर वेराइटी इम्प्रूवमेंट. फिश में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेरीन रिसोर्सेज एज वेल एज इनलैंड रिसोर्सेज. इसके बारे में भी हमने बात करी थी कि जो मेन रिसोर्सेज हैं जो मतलब जो उसके इनलैंड है उसमें क्या क्या होता है और जो कल्चर फिशिंग है उसके अंदर क्या क्या होता है. राइट. देन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिश दे कैन बी कल्चर्ड इन मेरीन and inland ecosystem. Marine fish capture is done by fishing nets guided by eco sounders and satellite. Now composite fish culture system is commonly used for fish farming. फिश फार्मिंग की भी हमने बात करी थी और फिर एंड में हमने बात की थी बी कीपिंग की, विच इज़ डन टू गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम द हनी कॉम्ब. राइट. So these were the all things which we had done in this chapter. So now let us move to the question answer of this chapter. So first question which we have here is explain any one method of crop production which ensure high yield. तो इसमें हमें एक ऐसे क्रॉप प्रोडक्शन का मेथड बताना है जिससे जो हाई यील्ड है वो हमें मिल सकती है क्रॉप्स की. तो जिसमें हम क्या मेंशन कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये एक ऐसा मेथड है जो कि हमें हाई यील्डिंग प्लांट ब्रीडिंग देगा. और साथ ही साथ जो है मैंने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस ब्रीडिंग को भी ऐड ऑन किया है कि प्लांट्स फ्रॉम वेरियस एरियाज आर पिक्ड अप विद प्रेफर्ड ट्रेट्स एंड देन द प्रोसेस ऑफ hybridization or cross breeding is done.
among these diversities to get a crop plant of anticipated characteristics. Right, question number 2 will be, why are manure and fertilizers used in fields? क्यों जो manure है और जो fertilizer है वो यूज़ किया जाता है fields में? तो that is used to enrich the quality of soil. तो यही चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे इस आंसर में कि सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और जो जिसकी मदद से जो हमारी प्रोडक्शन है वो अच्छी होती है. दे ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द डिजीजेस. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर रिप्लेनिश the soil by supply nutrients to the soil. Then they are excellent source of potassium, phosphorus and nitrogen which assist in healthy development of plants. Manures and fertilizers mainly improve the fertility of the soil. Right, now इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. तो इसमें हम बताएंगे कि जो इंटरक्रॉपिंग है बेसिकली वो होता क्या है. इसकी जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ से ले सकते हैं इन पॉइंट्स में से जो अभी हमने बात करी. उसके बाद हम इसके ये जो कुछ पॉइंटर्स हैं एडवांटेजेस है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि चेक्स द पेस्ट एंड रॉडेंट्स एंड हेल्स डिक्रीज द चांसेस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ क्रॉप्स. सो राइट, ये जो चीज़ें हैं वो हम ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें. इसके अलावा जो डिक्रीज चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन है, रिड्यूस लॉस ऑफ क्रॉप्स है विद हाई यील्ड, ये हम कर सकते हैं. जो लेस वाटर रिक्वायरमेंट है ये भी हम इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं. अगेन क्रॉप रोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो फार्मर है वो ग्रो कर सकते हैं 2 to 3 क्रॉप्स एनुअली. और जो पल्सेस है टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड हेंस रिक्वायर मिनिमल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र. तो इनको जो फर्टिलाइज़र है उसकी भी कम से कम ज़रूरत पड़ेगी. जो बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ईजिली इसमें ग्रो करवाए जा सकते हैं, ये इसके एक एडवांटेजेस है. और बेस्ट यूज़ ऑफ लैंड विद प्रॉपर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये भी एक हम इसकी एडवांटेज में ऐड कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. व्हाट इज़ जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड हाउ इज़ इट यूज़फुल इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो इसकी बात करेंगे. जो जेनेटिक मैनिपुलेशन है वो कैसा प्रोसेस है विच ट्रांसफर द ऑफ जीन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. हेयर जीन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द क्रोमोसोम सेल्स एंड हेंस रिजल्ट्स इन अ ट्रांसजेनिक प्लांट. तो इसका हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं. इसका एग्जांपल हम बीटी कॉटन ले सकते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि कैरी करता है बैक्टीरियल जीन्स को और प्रोटेक्ट करता है प्लांट और इंसेक्ट को. तो यही सब बातें जो है हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं लाइक ब्रिंजल है, कैबेज है, राइस है, कॉलीफ्लावर है, मेज़ है, जिनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द इंसेक्ट. राइट, लाइक विद द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन, जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म से अनदर और जो हमें जिस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें चाहिए होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लूजेस अकर. तो जो स्टोरेज ग्रेन है वो उसके किस तरह से वो लूज़ कर जाता है, मतलब जो हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है. तो स्टोरेज ग्रेन अकर लॉसेस अकर ड्यू टू वेरियस एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर्स हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कि हमारे टेम्परेचर, प्रेशर या जिसमें जो लाइफ है वो नहीं होती है. राइट, तो हम इसमें फैक्टर्स ऐड ऑन कर सकते हैं ह्यूमिडिटी, एयर, टेम्परेचर, फूड, विंड. बायोटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे लिविंग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो आप इसमें ये ऐड ऑन कर सकते हो. इंसेक्ट, रॉडेंट्स, पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया, माइट्स एंड बर्ड्स, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखेंगे. हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स. जो एनिमल हस्बेंड्री है वो किस तरह से बेनिफिट करती है फार्मर को. तो इसमें देखो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन करे हैं, आप इससे ज़्यादा भी मेंशन कर सकते हैं. लाइक यील्ड्स इन गुड क्वालिटी कैटल, बेटर क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन होता है और यूज़ इन एग्रीकल्चर फॉर कार्टिंग एंड इरीगेशन एंड टाइलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है. नाउ बेनिफिट्स क्या हैं कैटल फार्मिंग के, ये हमें क्वेश्चन 7 में बताना है. तो इसके बेनिफिट्स हैं कैटल आर यूज इन एग्रीकल्चर पर्पस और जनरेशन ऑफ गुड क्वालिटी कैटल, मिल्किंग एंड मीट पर्पस के लिए भी ये काम में लाया जाता है या इसे किया जाता है. स्किन ऑफ कैटल इज़ यूज फॉर लेदर एंड वूल इंडस्ट्री ऑल्सो. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं. फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज़ कॉमन इन पोल्ट्री फिशरी
इज एंड बी कीपिंग। इनमें क्या चीज़ कॉमन है? सो फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक जो है वो इन तीनों प्रोसेसेस में जो है वो अपनाई जाती है। अलॉन्ग विद दीज टेक्निक रेगुलर एंड प्रॉपर मेंटेनेंस मेथड जो है वो हमें मेंटेन करके रखना ज़्यादा ज़रूरी है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। तो देखो जो कैप्चर फिशिंग है उसमें हम क्या मेंशन करेंगे कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो फिशेज हैं वो कैप्चर की जाती है फ्रॉम वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सी है, रिवर है और पॉन्ड्स हैं, तो ये हम उसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं मेरीन कल्चर की, तो जो मेराई कल्चर है उसमें क्या होगा, जो कल्चरिंग ऑफ फिश है इन मेरीन फिशेस लाइक प्रॉन्स, ऑयस्टर, भेटकी, मुलेट्स, ये जो सभी है वो मेराइन वाटर फॉर कमर्शियल यूज़ के लिए इनकी फिशिंग जो है वो की जाती है। देन एक्वा कल्चर की अगर हम बात करें तो एक्वा का मतलब मैंने आपको बताया था लाइक वाटर, अब तब तो आपको याद ही हो गया होगा, राइट। सो इन्वॉल्व्स इन कल्चरिंग ऑफ फिश इन बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर, ये जो है वो दोनों जगह पर काम में लाई जा सकती है, राइट। सो दिस इज़ इट। If you have any question or any doubt or any kind of query, then you can write it down in the chat box or the comment box. Till then, take care. Have a good day ahead. क्या हुआ जीजी, हम क्या पूछ रहे थे?